السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں مجاہد خان۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ قومی اسمبلی کو آج واضح طور پر بتایا گیا کہ ملک کے دیوالیہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے اور پاکستانی عوام ان کے بیانی اور یو ٹرنز پر ان کا احتساب کریں گے۔ پارلیمانی امور کے وزیر نے کہا ہے کہ پنجاب اور گلگت بلتستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا جائزہ مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ دوسرے صوبوں میں جائزہ اگلے ماہ کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملک بھر میں سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں 31 کروڑ 60 لاکھ ڈالر تقسیم کیے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان عوام کی بہتری اور اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے دنیا کے ساتھ اشتراک عمل میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ وزیر خزانہ اور صدر نے آج اسلام آباد میں ملاقات میں ملک کی مجموعی معاشی اور مالیاتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ملک میں کھاد کی طلب پوری کرنے کے لیے 1,60,000 میٹرک ٹن کھاد درآمد کی منظوری دی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان سلامتی کونسل کو مزید نمائندہ جمہوری اور مؤثر ادارہ بنانے پر زور دیا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ جموں کشمیر اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ ایک متنازع علاقہ ہے اور بھارتی حکومت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات سے حقائق اور علاقے کی متنازع حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ آج ملتان میں 19 برس سے کم عمر کھلاڑیوں کے دوسرے T20 میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے مجاہد خان۔ قومی اسمبلی کو آج واضح طور پر بتایا گیا کہ ملک کے دیوالیہ ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ خزانے کی وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ جب موجودہ اتحادی حکومت نے اقتدار سنبھالا تو ملک کو مشکل صورتحال کا سامنا تھا، جبکہ عالمی مالیاتی فنڈ کا پروگرام بھی معطل تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے IMF کے پروگرام کو بحال کرایا، جبکہ برآمدات میں بہتری لائی جا رہی ہے اور ملک میں ترسیلات زر بھی بڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اصلاحات کے نتیجے میں سرمایہ کار ملک میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔ وزیر مملکت نے کہا کہ عالمی برادری نے سیلاب کے بعد تعمیر نو اور بحالی کی کوششوں میں پاکستان کی مدد کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس دہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لاتے ہوئے باضابطہ معیشت کا حجم بڑھانے کے لیے پالیسیاں وضع کی جا رہی ہیں۔ خزانے کی وزیر مملکت نے کہا کہ قیمتوں میں موجودہ اضافے کے پیچھے خارجی اور داخلی دونوں طرح کے عوامل کار فرما ہیں اور ان قیمتوں کو روکنا حکومت کی ترجیح ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی نے کہا کہ پنجاب اور گلگت بلتستان میں سیلاب زدہ علاقوں کے نقصانات کا جائزہ مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ دوسرے صوبوں میں سروے اس ماہ کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر تجارت نوید قمر نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستان کی تجارت بڑھی ہے اور حکومت کی کوشش ہے کہ دوست ملک کے ساتھ تجارت مزید بڑھائی جائے۔ ایوان میں 7 شریف ٹریفک حادثے میں جاں بحق افراد کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ قومی اسمبلی میں آج ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں پاکستان کو مزید مساوات اور شمولیتی ملک بنانے کے لیے 1973 کے آئین اور بچوں کے حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے کنونشن کے تحت تمام بچوں کے حقوق کے تحفظ کی دوبارہ یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ یہ قرارداد مہناز اکبر عزیز نے پیش کی، جس میں ہر بچے اور ماں کے حقوق اور تمام بچوں کے لیے بہترین دیکھ بھال اور محفوظ ماحول کی فراہمی کی ضرورت کو تسلیم کیا گیا۔ قرارداد میں بچوں کی اسمگلنگ اور ان سے ناروا سلوک جیسی مذموم سرگرمیوں کی شدید مذمت کی گئی اور ان غیر انسانی اور وحشیانہ جرائم کے خاتمے کے لیے سخت قانون سازی اور اس پر عمل درآمد کی سفارش کی گئی۔ قرارداد میں آئین کے مطابق بچوں سے مشقت لینے کے ناصور کو بھی ختم کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ قرارداد میں اہم امور میں بچوں کی آوازوں کی شمولیت یقینی بنانے کا عزم کیا گیا تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو سکے۔ قرارداد میں عزم ظاہر کیا گیا کہ حقیقی معنوں میں سب کے لیے معیاری تعلیم کے حصول کے مساوی مواقع پیدا کیے جائیں گے۔
قومی اسمبلی نے بچوں اور ماؤں میں غذائی قلت کی کمی دور کرنے اور بچوں میں نشوونما کو بحال کرنے کے لیے وقت اور کوششوں کی سرمایہ کاری کرنے کے عزم کا اعادہ کیا تاکہ پاکستان کے مستقبل کو محفوظ کیا جا سکے۔ ایوان نے اپنی قرارداد میں عزم کیا کہ جسمانی، ذہنی یا سماجی طور پر معذور بچوں کا خصوصی علاج، تعلیم اور ضروری نگہداشت کی جائے گی۔ قرارداد میں بچوں کو تعمیر مواقع فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا کیونکہ اس طرح کی شمولیت جمہوریت کے مستقبل کے لیے اہم ہے۔ ایوان نے بچوں کے حقوق کے حوالے سے قانون سازی، مشاورت اور نگرانی کے عمل کے لیے پارلیمانی کمیٹیوں کی حمایت کرنے اور انہیں مستحکم بنانے کا اعادہ کیا۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی شام 5 بجے ہوگا۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ عوام سے مسترد ہونے کے بعد ورک فرام ہوم بن گیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے اور پاکستان کے عوام عمران خان کے جعلی بیانیوں اور یو ٹرن پر ان کا احتساب کریں گے۔ یہ تمام بیانیاں حقیقی آزادی کا شور وہ چور مچا رہا تھا جس نے حرم شریف کی جو عکس تھا اس کی گھڑی کوڑیوں کے دام بیچی۔ عوام کے سامنے مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں، کانوں کے اندر اسلامک ٹچ دینے کی بات کرتے ہیں اور وہاں توشہ خانہ کی گھڑیوں کی غلط ایویلیویشن کر کے ان کو خریدے بغیر بیچ کے عمران خان کی گھڑی نے عمران خان کی اوقات بتائی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بلیم گیم نے ریاستی اداروں کو بھی نہیں بخشا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں سرکاری تحائف بیچ کر اور خارجہ پالیسی تباہ کر کے ملک کے وقار کو داغدار کیا۔ حکومت نے ملک بھر کے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 31 کروڑ 60 لاکھ ڈالر تقسیم کیے ہیں۔ یہ بات غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کی وزیر شازیہ مری نے اٹلی میں خوراک کے عالمی پروگرام کے انتظامی بورڈ کو پاکستان میں حالیہ سیلاب اور اس کے اثرات سے متعلق بریفنگ میں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو 2030 تک غذائی عدم تحفظ کے مسئلے کا سامنا ہے کیونکہ ملک کے 82 اضلاع میں 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور خوراک کے عالمی پروگرام نے سیلاب زدہ علاقوں میں حاملہ خواتین اور شیرخوار بچوں کی ماؤں کی صحت اور غذا کی صورتحال کی بہتری پر خصوصی توجہ کے ساتھ غذا کی کمی سے بچاؤ کا اقدام شروع کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عوامی بہبود کی خاطر اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج دوپہر اسلام آباد میں صحافیوں کے گفتگو کے دوران خارجہ پالیسی کی ترجیحات اجاگر کرتے ہوئے کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم ہمسایہ ملکوں سمیت تمام ممالک سے پرامن تعلقات چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت پاکستان کی خارجہ پالیسی کو درست سمت میں لے کر جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے پہلا دورہ چین کا کیا اور دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سیاسی تعلقات کو بہتر بنانے کی راہ ہموار کی۔ انہوں نے کہا کہ چین نے ہر قسم کے حالات میں ہمیشہ پاکستان کی مدد کی اور اس کا ثبوت چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ، چینی جامعات میں پاکستانی طلبہ کے داخلے کا دوبارہ رجحان اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے دونوں ملکوں کا باہمی تعاون ہے۔ میرا سب سے فرسٹ جو بائیلیٹرل ورچوئل انٹریکشن تھا وہ چین کا وزیر خارجہ کے ساتھ اسٹیٹ کانسلر کے ساتھ رہا تھا، جس میں ہم نے تفصیلی طور پہ پاکستان کے اور چین کے جو انگیجمنٹس رہے ہیں، اکنامک، پولیٹیکل اور باقی جو حالات ہیں، اس میں ہم نے تفصیلاً انگیج کیا اور obviously چاہے وہ ہمارا سی پیک کے منصوبے ہیں، جو ہمارے دہشت گردی کے مسئلے ہیں، سارے ایشوز پہ بہت سا پازیٹیو انگیجمنٹ رہا۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ملک تعلقات کی ایک تاریخ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسائل تب ابھرتے ہیں جب دونوں ملکوں کے درمیان رابطوں کا فقدان ہوتا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ان کے امریکی وزیر خارجہ اینتونی بلنکن سے مثبت اور نتیجہ خیز رابطے ہیں اور پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے مثبت سمت دکھائی دینے لگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں پاک امریکہ روابط کے حوالے سے مذاکرات کی توجہ دہشت گردی اور ڈو مور کا بیان ہوتا تھا، لیکن اب ہم نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے تناظر میں معیشت، تجارت، صحت اور زراعت کو شامل کیا ہے۔
बिलावल भुट्टो जरदारी ने कसी जहती सतह पर मुस्बत रवाबित को भी उजागर किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन के लिए अपनी बरामदात के लिए तरजीही बर्ताव पर GSP+ का दर्जा हासिल किया। उन्होंने कहा कि इससे यूरोपीय यूनियन के लिए पाकिस्तान की बरामदात में 80% इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन की बरामदात में 60% इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस दर्जे में मजीद वुसअत आए, क्योंकि फरीकैन ने इस सहूलत के बायस बहुत इस्तेफादा किया है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने बैनुल अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया कि वो अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के साथ रवाबित उस्तवार करे ताकि वहाँ इंसानी बहरान से बचा जा सके और अफगान अवाम के माशी मसाइल को हल करने में मदद मिले। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से उन्होंने कहा कि हम इस मामले का आलमी अफ़हाम व तफ़हीम से हल चाहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने आज इस्लामाबाद में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना ने सदर को मुल्क की मजमूई माशी और माली सूरत हाल के बारे में आगाह किया। उन्होंने इस सदर को पाकिस्तान के अवाम खुसूसन मुल्क के पसमानदा और सैलाब से मुतासर इलाकों की आबादी को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत के इक़दाम से भी आगाह किया। मुलाकात में मालियाती और मईशत से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर भी ज़ेर बहस आए। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए 1,60,000 मीट्रिक टन यूरिया खाद बरामद करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में कमेटी के इजलास में पाकिस्तान ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने चीन से 1,25,000 मीट्रिक टन यूरिया और बाकी 35,000 मीट्रिक टन यूरिया आज़रबाईजान से बरामद करने की इजाज़त दी। TCP को यूरिया खाद के 2 लाख टन स्ट्रेटेजिक ज़खायर यकीनी बनाने के लिए बाकी यूरिया दरामद करने के इम्कानात पर गौर की भी हिदायत की गई। ECC ने वजारत रिहाइश और तामीरात के लिए 11 करोड़ 50 लाख रुपए की तकनीकी ग्रांट की भी मंजूरी दे दी। ख़वातीन के पार्लिमानी ग्रुप के एक वफ़द ने सनतों और पैदावार डिवीज़न की पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर सैयदा शाहिदा रहमानी की क़यादत में इंसदाद मनशियात के वज़ीर नवाबज़ादा शाहज़ैन बुगटी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डॉक्टर सैयदा शाहिदा रहमानी ने पाकिस्तानी नौजवानों में मनशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने वजारत इंसदाद मनशियात पर जोर दिया कि वो मुल्क में मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए मौसर कोशिशों में तेज़ी लाए। वफाकी वज़ीर ने वफ़द को इंसदादी मनशियात के हवाले से मुख्तलिफ नौयत की कानून साजी से आगाह किया, जिस पर मुतल्लिका वजारत काम कर रही है। कराची के एक्सपो सेंटर में 11वीं आलमी दिफाई नुमाइश और सेमिनार आइडियाज़ 2022 आज ख़त्म हो गई। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए दिफाई पैदावार के वफाकी वज़ीर मोहम्मद इसरार तरीन ने कहा कि हमने आइडियाज़ 2022 के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं। नुमाइश के ज़रिए मुल्क की बेहतरीन और तकनीकी तौर पर जदीद तरीन फ़ज़ाई और ज़मीनी आलात आलमी मार्केट में मुतारिफ कराए गए। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान कराची की नुमाइंदा मलाहत सौलत की इस रिपोर्ट में। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए दिफाई पैदावार इसरार तरीन ने कहा कि पाकिस्तान ने नुमाइश में दिफाई और तकनीकी लिहाज से बेहतरीन मसनूआत पेश की, जिन्होंने दुनिया की तवज्जो हासिल की। उन्होंने कहा, हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान ने दिफाई पैदावार के मैदान में खुद इन्हिसारी हासिल कर ली है। उन्होंने मजीद कहा कि नुमाइश के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन के माबैन 30 से ज़ायद मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए, जो इस नुमाइश की कामयाबी का मुबोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी मयार की नुमाइश का इनेकाद और इसमें पूरी दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक की शिरकत से पाकिस्तान का एक बेहतरीन इमेज दुनिया के सामने पेश हुआ है, जिससे दुनिया में पाकिस्तान का मजबूत तासुर मजीद उजागर होगा। वाज़ेह रहे कि आइडियाज़ 2022 का आगाज 15 नवंबर से कराची एक्सपो सेंटर में हुआ था। नुमाइश में 64 से ज़ायद ममालिक ने अपनी दिफाई मसनूआत पेश की, जबकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मंदूबीन, दिफाई तज्ज़ियाकारों और दिफाई ओहदेदारों की भी एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। 4 रोज़ा नुमाइश के दौरान पाकिस्तान की जानिब से मकामी तौर पर तैयार करदा बेहतरीन दिफाई मसनूआत पेश की गई, जिनमें मरकजी जंगी टैंक अल खालिद और अल जर्रार, जंगी तैयारा JF-17 थंडर, बख्तरबंद गाड़ियाँ और दीगर आला मेयार की मसनूआत शामिल हैं। नुमाइश के अख्ताम पर नुमाइश कुनंदगान में अवार्ड्स और शिरकत के सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। आइडियाज़ 2022 के मौके पर खिताब करते हुए डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल मोहम्मद आरिफ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान आला मेयार की दिफाई मसनूआत तैयार कर रहा है, जो कीमत के लिहाज से मुसाबकती है और मेयार के लिहाज से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शिशमाही बुनियादों पर आइडियाज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जारी रखेगा और दुनिया के मुख्तलिफ बरे-आज़मों में अपनी दिफाई मसनूआत बरामद करने के लिए उसके पास वसी मौके मौजूद हैं।
उन्होंने कहा कि हमें IDS 2022 के लिए तुर्की, चीन, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दीगर ममालिक से अच्छा रद्द-ए-अमल मिला है। आलमी बैंक के रीजनल डायरेक्टर जॉनी रोम की सरबराही में आलमी बैंक के एक वफ्द ने आज वजीर आला हाउस कराची में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की। वजीर आला हाउस के तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुतासिरीन सैलाब के लिए घरों की दोबारा तामीर पर मुश्तमिल अमूर के अलावा सैलाब से मुतासर किसानों को बीजों की फराहमी के अमूर का भी जायजा लिया गया। मुलाकात में बताया गया कि आलमी बैंक ने किसानों को बीजों की फराहमी के लिए $10 करोड़ मुख्तस किए हैं, जबकि 12.5 एकड़ अरादी के हामिल किसानों को मजीद माली इमदाद फराहम करने का फैसला भी किया गया है। मुलाकात में बताया गया कि आलमी बैंक ने सैलाब से मुतासर इलाकों में घरों की तामीर के लिए 110 अरब रुपए देने का वादा किया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शिमाली इलाका जात में मौसम सरमा की सयाहत के फ़रोग़ के लिए सयाहों को सहूलियात फ्राहम करने से मुतालिक इक़दाम कर रही है। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान पेशावर के नुमाइंदे जौहर अली की इस रिपोर्ट में। सूबे के सयाहती मकामात पर मौसम सरमा की आमद के बाद खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी दारुल हुकूमत और पंजाब के मैदानी इलाकों से बड़ी तादाद में सयाह इन इलाकों का रुख कर रहे हैं। इस सिलसिले में कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मानसहरा नारायण जलकट रोड कागान तक साफ कर दिया है ताकि सयाह बर्फबारी के दौरान और इसके बाद इलाके की खूबसूरती के नज़ारों से महजूज हो सके। चेयरमैन कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सयाहों को बेहतरीन खिदमात की फराहमी की हिदायत की है ताकि सरमाई सियाहत को फ़रोग़ दिया जा सके। बलूचिस्तान हुकूमत सैलाब से मुतासरा इलाकों में लोगों को रिलीफ फ्राहम करने के लिए आटे का 20 किलोग्राम का थैला 1470 रुपये में फ्राहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। सूबाई हुकूमत के एक अहदेदार के मुताबिक रबी की फसल की काश्त के लिए बलूचिस्तान के तकरीबन 1 लाख किसानों को गंदम के बीज भी फ्राहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों के किसानों को इस मकसद के लिए 2 अरब 20 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मौजूदा मौसम में किसानों को मुफ्त बीज की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए 50 किलो गंदम के 3,81,000 थैले खरीदे हैं। उन्होंने कहा सूबे को खुद कफील बनाने के लिए गंदम उगाने वाले किसानों को तमाम ज़रूरी सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के उसूलों और तामीरी और कसीर जहती ताउन पर मबनी ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया है। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली के इजलास में मसावी नुमाइंदगी के सवाल, सलामती कौंसिल की रुकनीत में इजाफे और कौंसिल के दीगर अमूर से मुतालिक खिताब करते हुए कही। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि जनरल असम्बली ने 12 इस बात पर इत्तेफाक किया है कि सलामती कौंसिल की मुसावी जोग्राफियाई बुनियादों पर तोसी के जरिए तश्कील नौ की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें मज़ीद नुमाइंदा जमहूरी, शफाफ, मौसर और काबिल एहतसाब सलामती कौंसिल की ज़रूरत है। मुनीर अकरम ने कहा कि सलामती कौंसिल की इस्लाहात में हर रुकन मुल्क के कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में सियासी तजियाकार और सिविल सोसाइटी के अरकान ने कहा है कि जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ इलाका है और भारतीय हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम से उसकी मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं हो सकती। सियासी तजियाकार और सिविल सोसाइटी के अरकान ने श्रीनगर से टेलीफोन पर कश्मीर मीडिया सर्विस से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत खुद मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में लेकर गया था और आलमी इदारे ने इस सिलसिले में कई करारदादें मंजूर की, जिनमें इस तनाज़े को जम्मू कश्मीर में इस तस्वाब राय के जरिए हल करने पर जोर दिया गया है। सियासी माहिरीन ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा 7 दिहाइयों से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह से कश्मीरियों को मुसलसल शदीद मुश्किलात का सामना है। पॉलिटिकल पीस मूवमेंट, कश्मीर पीपल्स फोरम, फोरम फॉर पीस एंड जस्टिस जम्मू कश्मीर, सिख मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सर्कल और जम्मू कश्मीर जस्टिस एंड पीस इनिशिएटिव के रहनुमाओं ने कहा है कि तनाज़े कश्मीर एक सियासी और इंसानी अलमिया है जिसे आलमी बरादरी की तरफ से नज़रअंदाज करना इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने भारत पर जोर दिया कि वह तमाम कश्मीरी नज़रबंदों को रिहा और जालिमाना कवानीन को मनसूख करे ताकि तनाज़े कश्मीर के तस्फिये के लिए भारत, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के हकीकी नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल पैदा हो सके।
इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के सिफारत खाने ने शुमाली गजा में वाक़ पनाह गुज़ीन कैंप में जबालिया के एक घर में आतिशदगी के अफसोसनाक वाक़े में इंसानी जानों के ज़िया के सोग में अपना परचम सरने को रखा। फ़लस्तीनी सिफारत खाने के मुताबिक इस वाक़े में 21 अफराद पर मुश्तमिल पूरा ख़ानदान जाँ बहक हो गया। ये अफसोसनाक वाक़या मुतासिरा ख़ानदान की तरफ से इलेक्ट्रिक जनरेटर चलाने के लिए ईंधन के ज़ख़ीरे में आग भड़क उठने से पेश आया। इसराइल की गैर मुनसिफाना और वहशियाना नाकाबंदी के पेश नज़र ईंधन ज़ख़ीरा करना हर फ़लस्तीनी की ज़रूरत है। शुमाली कोरिया ने आज ताकतवर तरीन बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया। मिसाइल ने होक्काइडो के मग़रिब में तकरीबन 210 किलोमीटर दूर समंदर में जापान के अहम इक़्तिसादी जोन में अपने हदफ को निशाना बनाया। उधर अमरीकी नायब सदर कमाला हैरिस और जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के रहनुमाओं ने आज एक हंगामी इजलास किया और बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बात की रोकथाम के लिए शुमाली कोरिया पर दबाव डालने का अज़्म जाहिर किया। सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आज थाईलैंड पहुंच गए हैं। सऊदी क़यादत का 3 दिहाइयों में थाईलैंड का ये पहला दौरा है। मिस्र के शहर शर्म शेख में मौसमियाती तब्दीली के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में एक रोज़ की तौसीह कर दी गई है, जिसका मकसद आलमी हिद्दत में इजाफे की वजह से तरक्की पज़ीर मुल्कों में होने वाली तबाही के लिए फंड के क़याम पर ताअत्तुल ख़त्म करने की कोशिश करना है। रेडियो खबरनामा जारी है और अब वक्त है खेलों की खबरों का। मुल्तान में आज पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश की अंडर 19 क्रिकेट टीम को दूसरे और आखिरी T20 मैच में 7 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 163 रन बनाए और उसके 6 खिलाड़ी आउट हुए। पाकिस्तान ने जीत के लिए दिया गया हदफ 18.2 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान के साद बेग को 89 रन की शानदार इनिंग खेलने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव फैसल हसनैन ने आयरलैंड की खवातीन और बांग्लादेश की अंडर 19 टीमों को लाहौर और मुल्तान के कामयाब दौरों पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने एक बयान में कहा कि हमें आयरलैंड की खवातीन टीम की पहली बार मेज़बानी करने पर और बांग्लादेश की अंडर 19 टीम के 2007 के बाद अब दौरा करने पर इंतहाई खुशी हुई। फैसल हसनैन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों टीमें हमारी मेहमान नवाजी और खेल के दौरान दी जाने वाली सहूलतों से लुत्फ अंदोज हुईं। उधर पाकिस्तान की खवातीन टीम ने एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी सीरीज 3-0 से जीतकर ICC विमेन चैंपियनशिप टेबल में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। इससे पहले आयरलैंड की खवातीन टीम T20 सीरीज में 2-1 से कामयाब हुई थी। दूसरी जानिब बांग्लादेश की अंडर 19 टीम ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीतने से पहले पाकिस्तानी टीम के साथ 4 रोज़ा मैच सीरीज को बराबर कर दिया। 2 मैचों पर मुश्तमिल T20 मैच सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। आज वेलिंगटन में शदीद बारिश की वजह से न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान T20 का इफ्तिताही मैच मनसूख कर दिया गया। दोनों टीमें अपना दूसरा T20 मैच इतवार को माउंट मॉन्गनाई में खेलेंगी। गुज़श्ता रोज़ एडिलेड में पहले एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच में ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड के खिलाफ सुस्त रवि से ओवर कराने पर मैच फीस का 40% जुर्माना किया गया है। मैच रेफरीज के एमिरेट्स ICC एलीट पैनल के डेविड बून ने ICC के कवायद और ज़वाबित का जायजा लिया तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर से मुकर्ररा वक्त में 2 ओवर कम कराए, जिस पर उन्होंने जुर्माना आयद किया। कप्तान पैट कमिंस को कसूरवार करार दिया गया और उन्होंने जुर्माने को तस्लीम किया। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खवातीन को बाख्तियार बनाने की गरज से हुकूमत के इक़दाम के हवाले से उनमें शऊर उजागर करने के लिए जामे आगाही मुहिम की ज़रूरत पर जोर दिया है और उनसे कहा है कि वो हुकूमत के इन प्रोग्रामों से इस्तेफादा करें। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में विमेन बिजनेस नेटवर्क के एक वफ्द से मुलाकात में कही। मुलाकात के दौरान सदर ममलिकत ने कहा कि खवातीन को मद्देनजर रखकर बहुत से मनसूबे शुरू किए गए हैं, जिनमें बैंकों में जाए बगैर और जायदाद के हुकूक एक्ट के बगैर बैंक में अकाउंट खोलना भी शामिल है। सदर ने खवातीन की आबादी के अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे करने और उन्हें माली वज़ाइफ फराहम करने में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम के किरदार की तारीफ करते हुए तमाम खवातीन नेटवर्क्स और मुतालिका इदारों पर जोर दिया कि वो खवातीन को आगाही देने के लिए प्रोग्राम्स शुरू करें ताकि वह हुकूमत की तरफ से पेश करदा मौक़े से भरपूर इस्तेफादा कर सकें।
25,000 और 40,000 के रजिस्टर्ड प्रीमियम बॉन्ड्स की कुरानदादी 12 दिसंबर, जबकि 200 रुपये मालियत के इनामी बॉन्ड्स की कुरानदादी 15 दिसंबर को मुल्तान और लाहौर में होगी। पाकिस्तानी फल और सब्जियों की चीन को बरामदात 5 करोड़ 43 लाख 40 हजार डॉलर से तजावज कर गई, जो सालाना बुनियाद पर रिकॉर्ड इजाफा है। ग़िज़ा के ग्रुपों की बरामदात में जारी साल के पहले 4 माह में 4.27% इजाफा हुआ। 1 अरब 49 करोड़ 30 लाख डॉलर मालियत की मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया बरामद की गई, जबकि गुज़िश्ता बरस इसी अरसे के दौरान 1 अरब 43 करोड़ 20 लाख डॉलर की बरामदात रिकॉर्ड की गई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 220 रुपये 37 पैसे और कीमत फ़रोख्त 225 रुपये 33 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 262 रुपये 57 पैसे और 268 रुपये 50 पैसे, यूरो 229 रुपये 23 पैसे और 233 रुपये 94 पैसे, सऊदी रियाल 58 रुपये 55 पैसे और 60 रुपये 3 पैसे, यूएई दिरहम 60 रुपये 39 पैसे और 61 रुपये 36 पैसे, जापानी येन 1 रुपये 57 पैसे और 1 रुपये 61 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,35,460 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,40,840 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 1,24,441 मीट्रिक टन बरामदी और 16,405 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और आप सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट ने बेल्जियम में जनूबी एशियाई मुल्कों के अफराद को मुत्तहिद कर दिया। गुज़श्ता 2 हफ्ते में 500 से ज़ायद अफराद पाकिस्तानी एक्शन फिल्म देखने के लिए किनेपोलिस एनरैप गए। फिल्म देखने वालों में ज़्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भारत से था। फिल्म में पेश की गई एशियाई सकाफत को मुतादिद अफराद ने सराहा। उन्होंने कहा कि द लेजेंड ऑफ मौला जट एक खूबसूरत फिल्म है जो सकाफती अक़दार से भरपूर है। इस फिल्म ने मगरिब से में पाकिस्तानी फिल्मी सनत के लिए दरवाजे खोले हैं। पाकिस्तानी एक्शन मूवी की हिदायतकारी और तहरीर बिलाल लाशारी ने की है। नामवर गुलकार मलकू ने कहा कि उन्होंने सीजन 1 में तकरीबन 20 गाने रिलीज किए हैं और अब वो सीजन 2 के लिए गाने रिलीज करने में मसरूफ हैं। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे को एक खसूसी इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट की शक्ल में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने गानों के जरिए पंजाब की अजीम सकाफत को उजागर किया जाए। मलकू ने बताया कि उनका असली नाम मोहम्मद अशरफ मलिक है, ताहम वो अपने मद्दाहों में मलकू के नाम से मशहूर हैं और उनकी वालिदा उन्हें बचपन में मलकू कहा करती थी। नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में आज आर्टिस्ट एहसन कुरैशी और कामरान कुरैशी की जंगली हयात और कुदरती मनाजिर की 77 तस्वीर की नुमाइश की गई, जिसका मकसद अवाम को जंगली हयात, माहौल और आलूदगी के मसाइल के बारे में आगाही फराहम करना है। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम शामिल करेंगे साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने ओरायन कैप्सूल से बनाई गई ज़मीन की वीडियो जारी कर दी। ओरायन कैप्सूल को आज सुबह मशरिकी मियारी वक्त के मुताबिक 2 बजे आर्टेमिस सवल मिशन के साथ खला में रवाना किया गया। वादे रहे कि जिस रॉकेट से इसे खला में दागा गया है वो अब तक ताकतवर तरीन रॉकेट भी है। 24 सेकंड के क्लिप में देखा जा सकता है कि जैसे जैसे रॉकेट दूर जा रहा है, ज़मीन छोटी होती जा रही है। चीनी कंपनी ने लोगों की हथेली को बतौर कार्ड इस्तेमाल करके रकम की अदायगी के तजुर्बात किए हैं। कंपनी के मुताबिक कई माह से इसके तजुर्बात जारी थे और पहली मरतबा चीनी शहर ग्वांगसू में इसका अमली मुजाहिरा किया गया है। जामे कराची से शोबा केमिस्ट्री की प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा आशिक ने माल्टा में एक मारूफ कॉन्फ्रेंस में अपनी तहकीक पेश की। डॉक्टर उज़मा आशिक ने प्लाटिनम के मुरक्कबात के कैंसर के खिलाफ मुमकिन असरात पर अपना तहकीकी मकाला पेश किया, जिस पर उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया गया। और मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल क्या रही, आइए सुनते हैं माहिर मौसमियात से। 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहा। सबसे कम दर्जा हरारत लैब में -10, स्कर्दू -5, कालाम में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 7, लाहौर 11, कराची 19, पेशावर 5, मुजफ्फराबाद 6, गिलगित 3, जबकि कोयटा में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी बरूद रहेगा। ताहम गिलगित-बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और खिता पठवार में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के है। गंदम की काश्त के बारानी और खिता पठवार में मूंगफली की काश्त के इलाकों में हफ्ते के रोज चंद मुकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है।
جبکہ اتوار اور سوموار کو موسم خشک رہے گا. کسان حضرات اپنے زرعی معاملات موسم کی پیش گوئی کے مطابق انجام دیں. اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے. قومی اسمبلی کو آج واضح طور پر بتایا گیا کہ ملک کے دیوالیہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں. وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے اور پاکستانی عوام ان کے بیانیے اور یو ٹرنز پر ان کا احتساب کریں گے. پارلیمانی امور کے وزیر نے کہا ہے کہ پنجاب اور گلگت بلتستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا جائزہ مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ دوسرے صوبوں میں جائزہ اگلے ماہ کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا. حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملک بھر میں سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں 31 کروڑ 60 لاکھ ڈالر تقسیم کیے ہیں. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو منصور و رشید، مدیر ہوم ڈیسک عبدالحمید ملک، مدیر فورن ڈیسک اور کوارڈینیشن ایڈیٹر جاوید اقبال سمیجو، مدیر کھیلوں کی خبریں مقدس رؤف، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں الیاس صفدر، مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر، نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.